Hello students, this is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we shall be discussing about decimal number system, binary number system, their conversion into each other, and algorithm development. We start our today's lecture with two examples of positional number system, decimal number system and binary number system. Decimal number system has base 10, उसमें 10 अलग अलग सिंबल्स होते हैं 10 यूनिक डिजिट्स के लिए और इन number system में let us consider an example 3729.85 इसको हम expanded form में लिखते हैं to understand the importance of positions of different digits. So 3729.85 can be written as 3000 plus 700 plus 20 plus 9 plus 0.8 plus 0.05. हर डिजिट की वैल्यू हमने उसकी पोजीशन के हिसाब से लिख दी है. इन सारे नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3729.85. और अब हम ये 3000 को लिख सकते हैं 3 into 10 raised to power 3, 700 को लिख सकते हैं 7 into 10 raised to power 2, सिमिलरली 20 के लिए 2 into 10 raised to power 1, 9 के लिए 9 into 10 raised to power 0, 8 can be written as 8 upon 0.8 can be written as 8 upon 10, that means 8 into 10 raised to power minus 1, 0.05 can be written as 5 divided by 100, that means 5 into 10 raised to power minus 2, and again इन सबको सॉल्व करके जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आया 3729.85. इसका बेस शो करने के लिए हम इस नंबर के बाहर ब्रैकेट लगा के और सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं 10. Now इस एग्जाम्पल को यूज करके let us form a general expanded form for an n digit number, a number having n digits in the integral part and m digits in the fractional parts. Decimal से पहले n digits हैं, decimal के बाद m digits हैं. So it can be written as, मान लिया nth digit है dn, तो सबसे पहला एक्सपेंशन लिखा जाएगा dn into 10 raised to power n minus 1. अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल दिखें तो सबसे पहला डिजिट था 3, हमने 3 को 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई किया था एंड 3 is 1 less than the total number of digits. 4 डिजिट्स थे गिवन नंबर में, so सबसे पहली पावर आई 10 raised to power 3. सिमिलरली n डिजिट नंबर में सबसे पहली पावर आएगी 10 raised to power n minus 1. तो इसी हिसाब से हम आगे लिखते गए. नेक्स्ट आया d n minus 1th डिजिट into 10 raised to power n minus 2 and so on. फर्स्ट डिजिट आया यूनिट प्लेस पे d1 into 10 raised to power 0. उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट आ गया d minus 1 into 10 raised to power minus 1 and so on. mth digit आया d minus m into 10 raised to power minus m. So this form of writing a decimal number is known as its expanded form. इस expanded form से हमें हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू का पता आराम से चल जाता है. Next we come to binary number system. Binary by means 2. So इस number system में सिर्फ दो digits होते हैं 0 and 1. Therefore the base is 2. Each symbol is known as a bit, which is short form of binary digit. Binary digit का bi ले लिया और digit का सिर्फ last वाला t ले लिया. So these two symbols are known as bits. A computer stores all information, that is numbers, letters and special characters in the form of binary digits. एक कंप्यूटर जो है वो binary digits की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. It is because a circuit is either on, which is known as state 1, or off, which is known as state 0. एक कंप्यूटर सर्किट जो है, कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने होते हैं उन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती. उन्हें क्या समझ आता है, या तो सर्किट ऑन है या सर्किट ऑफ है. सिर्फ दो चीजें समझ आती हैं, या तो सर्किट ऑन है या सर्किट ऑफ है. तो अगर सर्किट ऑफ है
तो उसे हम कहते हैं 0 स्टेट, अगर सर्किट ऑन है तो उसे हम कहते हैं 1 स्टेट। तो जो जाल बुना होता है सर्किट्स का एक कंप्यूटर के अंदर, वो इन्हीं ऑन ऑफ सिंबल्स को समझ के ही गिवन फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। So it is a binary based system. The system simplifies the design, reduces the cost and improves the reliability of the computer system. The binary numbers can be converted into decimal numbers and vice versa. तो हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में बदल सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने ऑलरेडी चेंज करके लिखा हुआ है, ऊपर वाली रो में है डेसिमल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे वाली रो में उसके करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू वाले बाइनरी नंबर्स हैं। 0 के लिए 0 ही आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 1 0, इसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 1 0 पढ़ेंगे। सिमिलरली 3 के लिए 1 1, तो इसे हम 11 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 1 1 पढ़ेंगे। सिमिलरली 4 के लिए 1 0 0, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 0 1, 6 के करस्पॉन्डिंग 1 1 1, 8 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0 0, 9 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0 1 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। So let us say we have a decimal integer number जिसको हम जो कि बेस 10 में है और उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, यानी कि नए बेस में कन्वर्ट करना है। नया बेस की वैल्यू है 2। सो हम क्या करेंगे, गिवन इंटीजर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। जो नया नंबर सिस्टम का बेस है उस बेस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर नोट कर लेंगे। फिर जो भी क्वोशिएंट आया, आंसर आया डिवाइड करके, उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है वो नोट कर लेंगे एंड सो ऑन। सो बार बार हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एंड उसके लिए लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। मान लिया हमारे पास एक नंबर है 121 बेस 10 में डेसिमल नंबर सिस्टम में, और उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी सिस्टम में, दैट मीन्स बेस 2 में। सो हम क्या करेंगे, 121 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 60 और रिमाइंडर बचा 1। 60 को फिर से 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 30, रिमाइंडर बचा 0। 30 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 15, रिमाइंडर बचा 0। 15 को 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 7, रिमाइंडर इज 1। 7 को 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 3, रिमाइंडर इज 1। 3 को 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 1, रिमाइंडर इज 1। और 1 को 2 से डिवाइड किया तो कोई इंटीजर पार्ट नहीं आता, सो विल राइट 0 एंड रिमाइंडर इज 1। सो हमने इधर एक कॉलम में सारे रिमाइंडर्स लिख लिए। अब जो रिमाइंडर हमारे पास सबसे बाद में आया, सबसे नीचे आया, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इट फॉर्म्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी इसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और जो रिमाइंडर हमारे पास सबसे पहले आया था उसको हम यूनिट प्लेस पे लिखेंगे सबके बाद, सो दैट इज नोन एज LSD और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। Therefore, 121 to the base 10 is equal to 1111001 to the base 2. So this is how we convert a decimal number into a binary number by continuously dividing by the new base value, that is 2. लेकिन अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट भी है, डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर हैं, फिर इस तरह डिवीजन से हमारा काम नहीं बनता, फिर हम उस फ्रैक्शनल नंबर को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करके डेसिमल से पहला इंटीजर पार्ट आएगा वो नोट कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर पार्ट नोट कर लेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, let us consider the example to convert 121.5625 to the base 10 into binary, that is to the base 2.
तो 121 हमने अलग से कैलकुलेट करना है, जो ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको कन्वर्ट कर चुके हैं बाइनरी नंबर में। अब हम कन्वर्ट करें 0.5625 को बाइनरी में। इसके लिए हम 0.5625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि न्यू बेस नंबर है। सो 5625 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.1250। तो इसमें 1 इंटीजर पार्ट है, इसको अलग कॉलम में लिख लिया। इट विल फॉर्म द बिट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर। डेसिमल पार्ट आया 1250, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.2500। 0 इंटीजर पार्ट, उसको अलग से कॉलम में लिख लिया। 2500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक आंसर एंड में डेसिमल पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए। सो एंड में हमारे पास आया, जब हमने 0.5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.0000। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, इंटीग्रल पार्ट हमने अलग से लिख लिया, और हमारी यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो गई। सो जो हमारे इंटीजर पार्ट्स आए थे, अलग कॉलम में हमने बिट्स लिखी थी, उसमें जो सबसे पहले इंटीजर पार्ट आया था वो अब बनाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे बाद में इंटीजर आया सबसे नीचे, वो बनाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो व्हेन वी कन्वर्ट 0.5625 इनटू बाइनरी, द आंसर इज, ऊपर से हम ऊपर वाला 1 हम पहले नोट करेंगे। सो आंसर इज 0.1001 to the base 2. Therefore 121.5625 to the base 10 is equal to 1111001, जो कि हम पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट करके गए थे 121 के लिए, 0.1001 to the base 2. So this is how we convert the integer part and the fractional part of a decimal number into binary number. Next we come to conversion of binary number into decimal number. सो जब हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर लिखेंगे, हर बिट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है, जो राइट हैंड साइड में सबसे पहली पोजीशन होती है वो 0th पोजीशन होती है, और इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे हम पीछे डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के गए थे बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 रेज़ टू पावर पोजीशन, यहाँ पे बाइनरी नंबर है तो हर डिजिट, हर बिट को हम 2 रेज़ टू पावर उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के हम सारे डिजिट्स को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास गिवन डेसिमल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कन्वर्ट 110.001 to the base 2 into decimal form, that is to the base 10. तो हमने गिवन नंबर लिख लिया, और इसमें जब हमने इनकी पोजीशन फाइंड आउट की, जो डेसिमल के पास सबसे पहला इंटीजर पार्ट है, दैट बिट इज 0, तो इसकी पोजीशन है 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 से। नेक्स्ट वाली 0 की पोजीशन है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 से। उसके बाद आया बिट जो आई, दैट इज 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 से। सिमिलरली लास्ट वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 से, और सिमिलरली जो डेसिमल का बाद वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, उसमें 10 की पावर से 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, दिस नंबर कैन बी एक्सपेंडेड एज 1 into 2 raised to power 3 plus 1 into 2 raised to power 2 plus 0 into 2 raised to power 1 plus 0 into 2 raised to power 0. उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के बिट्स आ गई, 0 into 2 raised to power 1 minus 1, ये पहली बिट आई, सेकेंड बिट भी 0 है तो 0 into 2 raised to power minus 2, थर्ड बिट 1 है तो 1 into 2 raised to power minus 3। इन सब की कैलकुलेट करके हमने वैल्यूज लिखी। तो जो बिट्स 0 थी उनके आंसर तो 0 ही आए, बाकी बिट्स के लिए आया 8 plus 4 plus 1/8।
1/8 को हमने कैलकुलेट कर लिया डेसिमल फॉर्म में, so इस the answer for this number is 12.125. That means 1100.001 ये बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर से में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 12.125 to the base 10. Now we come to next stage in the basics of computers. जब हमने कंप्यूटर से काम लेना है, उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम किस तरह से देंगे, उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज नोन एज एल्गोरिथम डेवलपमेंट. तो इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं प्रोग्राम. अ प्रोग्राम इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. These steps are known as phases in program development. तो हम स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, रैंडम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, नहीं तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं. So these steps are known as phases. The first phase is the problem definition. प्रॉब्लम को हमें डिफाइन करना है. We define the problem statement. What is our requirement? What should be the output of the problem solution, and we decide the boundary of the problem. So जो पहला स्टेप आता है वो बेसिकली ये है कि हमने हमारी प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम को हमें समझना है कि इस प्रॉब्लम को आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें हमारी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगानी है और कितनी हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. Next is problem analysis. In this phase, we determine the requirements like variables, functions, etc. to solve the problem. तो इस फेज में हम ये डिटरमिन करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, कितने फंक्शंस चाहिए होंगे, और उनके हमने नाम देने होते हैं, उनको डिफाइन करना होता है. That means we gather the required resources to solve the problem. Problem को solve करने के लिए हमें क्या resources चाहिए? This is stage 2. Stage 3 is algorithm development. An algorithm is a step-by-step sequence followed for finding the solution of a given problem. So एक बार हमने अपनी problem define कर ली, उसको सॉल्व करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमने कंप्यूटर को बता दिए, डिफाइन कर दिए. फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप ये इंस्ट्रक्शंस देनी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. सो दैट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इज नोन एज एल्गोरिथम. During this phase, we develop a step-by-step procedure to solve the problem using the specifications given in the previous phase. पहले फेज में, सेकंड फेज में हमने जो स्पेसिफिकेशंस दी थी उसके अनुसार हम जो प्रोसीजर फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज एल्गोरिथम. एक बार हमने वो प्रोसीजर सेट कर लिया कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलेंगे, अब अगला फेज आता है कि उन स्टेप्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करें. बिकॉज ये जो स्टेप्स हमने बनाए थे, एल्गोरिथम बनाया था, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में था, वो हमारी भाषा में था. अब इन सबको हम कंप्यूटर की भाषा में बदलेंगे. सो दैट इज नोन एज कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. So this phase uses a programming language to write or implement actual programming instructions for the steps defined in the previous phase. That means we write the program to solve the given problem using some programming language like C, C++, Fortran, etc. So कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने अपने एल्गोरिथम को कन्वर्ट करेंगे, and that process is known as coding and documentation. Every programming language has its own set of rigid rules, which is known as syntax, which have to be followed strictly while writing the code. So ये कोड लिखने के लिए एक इंसान को इन लैंग्वेजेस की थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इन्हें ही हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. Stage 5 is compiling, debugging and execution. Compiling means converting the source code written in a programming language
into machine language or code that a computer's processor uses. Compiling का मतलब है कि जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया था, अब उसको बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कोड में जो कंप्यूटर के सर्किट्स को समझ आता है। मैंने पहले बताया था कंप्यूटर के सर्किट्स को सिर्फ ऑन और ऑफ समझ आता है, दैट मीन्स सिर्फ बाइनरी समझ आता है। सो कंपाइलिंग मीन्स converting the program written in programming language into machine language which consists of binary codes. While compiling the code, we check whether the code written in previous step is solving the specified problem or has any errors. तो लिखते समय हमसे प्रोग्राम बनाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं। कई बार प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स हम गलत यूज कर जाते हैं, तो उन एरर्स को चेक करने के लिए द प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग. So the process of finding and correcting the errors in a program is known as debugging. Now there can be two types of errors in a program: syntax error and logic error. A program is said to be executed correctly if it gives the desired result after compiling and debugging. तो मान लिया हमने प्रोग्राम डीबग कर लिया, एरर्स हमने ढूंढ ली और ठीक कर दी, कंपाइल कर लिया ठीक ठाक, तो उसके बाद प्रोग्राम अगर हमें ठीक रिजल्ट दे देता है तो वी से दैट इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड करेक्टली. Let us define algorithm. An algorithm is a step-by-step sequence followed for finding the solution of a given problem. It may also be defined as a sequence of precise and unambiguous instructions for solving a problem in a finite number of steps so as to produce the desired result. And अब हम आए, what are the basic characteristics of algorithm? First characteristic, input specified. Algorithm must specify the quantities which must be read or known before the algorithm can begin. हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज कंप्यूटर को बतानी पड़ेंगी. वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टूड नहीं होता कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये हमें पहले से अपने एल्गोरिथम में, अपने प्रोग्राम में कंप्यूटर को बताना पड़ेगा. सो सबसे पहला स्टेप होता है जो इनपुट्स, हम जो प्रोग्राम में हम इनपुट्स ले रहे हैं वो हमने कंप्यूटर को बतानी है. सो वी हैव टू स्पेसिफाई द क्वांटिटीज विच मस्ट बी नोन बिफोर हैंड. Second characteristics of algorithm is its finiteness. The instructions of an algorithm must stop after a finite number of steps. वो कॉमन सेंस है, हम इंस्ट्रक्शंस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक नहीं ले जा सकते. इनफैक्ट ये इंस्ट्रक्शंस मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पूरी होनी चाहिए. Third characteristic is definiteness. Each step must be defined clearly. Definiteness means specifying the sequence of operations for turning input into output. Fourth characteristic is effectiveness. For an algorithm to be effective, all the steps must be executable and should be basic enough to be solved by pen and paper also. तो सबसे पहले तो हमें पेन और पेपर से हर स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए, तभी हम आगे कंप्यूटर को समझा सकते हैं. सो each step must be well defined, it should be basic and it should be executable. So this will determine its effectiveness. Fifth characteristic is time requirement. Algorithm should be fast enough to produce an output in a minimum possible time. So कम से कम टाइम लगना चाहिए उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने में. Sixth characteristic is output specified. जिस तरह हमने इनपुट स्पेसिफाई की थी उसी तरह हमें आउटपुट भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. सो आउटपुट प्रिसीजन रिक्वायर्स दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा, हाउ मच एंड व्हाट फॉर्म ऑफ द आउटपुट
शुड बी अचीव्ड, किस तरह की आउटपुट हमें चाहिए। अगर एक कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए तो वो इंटीजर फॉर्म में चाहिए या डेसिमल प्लेसेस भी चाहिए। अगर डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, वो हमें स्पेसिफाई करके एल्गोरिथम में ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। Algorithm is expressed in the language which is used in day-to-day life. तो जो भाषा हम आम तौर पे, क्योंकि एल्गोरिथम हम अपने लिए लिख रहे हैं जिसको हम बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। सो डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम लिखते हैं। द कॉमनली यूज्ड सिंबल्स आर असाइनमेंट सिंबल्स। ये जो सिंबल हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एरो इन द रिवर्स डायरेक्शन, this is known as assignment symbol. This is used to assign values to various variables. For example, if a is a variable and it is to be assigned the value b, that means अगर हम a को value देनी है b which is a constant या another variable expression, तो we write it as a assigned the value of b. फिर आते हैं हमारे पास रिलेशनल सिंबल्स। इन सिंबल्स के वैल्यू हमें मैथ्स में पहले ही मालूम है। हमारे पास सिंबल है लेस देन सिंबल, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन। ये हमने सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं रिलेशनल सिंबल्स। कुछ और रिलेशनल सिंबल्स के एग्जाम्पल्स, इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल a is equal to b, not equal to, greater than equal to, ये सारे सिंबल्स हम एल्गोरिथम डेवलप करते हुए यूज कर सकते हैं, इनमें से जो भी यूज होगा। And then we also have a comment symbol which is written inside curly brackets. This symbol is used to write comments in the algorithm statements such as begin. For example, हमने एल्गोरिथम में पहला स्टेटमेंट दिया begin, तो उसमें हमने कमेंट क्या दिया ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, start of the algorithm. For example, let us calculate the mean of the given numbers, और इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है। हमने एल्गोरिथम को नाम दिया मीन एल्गोरिथम। ये 5 नंबर, ये कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं 1, 2, 5, 6, 6, 99। इनकी मीन निकालनी है हमें। तो हम एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज, सबसे पहले हमने इनपुट दी, लिस्ट दी, ब्रैकेट में 1, 2, 5, 6, 6, 99। देन सबसे पहले जब हमने अभी पहला नंबर कंसीडर भी नहीं किया तो इनिशियल सम इज 0, सो सेट अ टोटल टू 0। और हमने, क्योंकि हमारे पास ये 6 नंबर है तो हमने काउंट भी करना है, एक एक करके नंबर प्लस करेंगे और उनको काउंट करेंगे कि वो प्लस हो गए हैं या नहीं। सो सेट द काउंटर टू 0, स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, एड द नंबर टू द टोटल। इनिशियल टोटल 0 था, पहला नंबर टोटल में प्लस करेंगे तो अब आंसर आएगा 1, और पहला नंबर हमने ऐड कर दिया तो काउंटर में भी हम ऐड 1 टू द काउंटर। सो इज दिस द लास्ट नंबर इन द लिस्ट? नहीं, ये लास्ट नंबर नहीं था। तो क्योंकि लास्ट नहीं है तो वी विल गो टू स्टेप 4a. So if no, go to the next number and repeat the steps a to c. If yes, go to 5. तो लास्ट नंबर है तो हम आगे स्टेप 5 पे चले जाएंगे। लास्ट नंबर नहीं है तो ABC स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे जब तक सारे नंबर प्लस नहीं हो जाते। जब सारे नंबर प्लस हो गए तो स्टेप 5 क्या आया, फाइंड द मीन बाय डिवाइडिंग द टोटल बाय द वैल्यू ऑफ द काउंटर। काउंटर याद है, काउंटर हमारा सारे नंबर्स को काउंट कर रहा था, तो जितने नंबर आए सम को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द मीन। और जो भी मीन आई, लास्ट इंस्ट्रक्शन इज डिस्प्ले द मीन। So this is an example of algorithm for calculating the mean of the given numbers. Next we come to advantages of algorithms. It is a stepwise representation of a solution to a given problem which makes it easy to understand. जो algorithms हम लिखते हैं वो easy language में होते हैं और problem की step wise solution होती है, so it is easy to understand. An algorithm uses a definite procedure.
It is not dependent on any programming language, so it is easy to understand. So क्योंकि ये हमने अपनी भाषा में लिखे हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, so they are easy to understand for anybody. उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती. Every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. हर step की अपनी logic होता है, अपनी logic sequence होती है, so उसको debugging करना यानी कि उसमें errors ढूंढना बहुत आसान होता है. By using algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or smaller steps. Hence, it is easier for programmer to convert it into an actual program. So, एक programmer के लिए algorithm को program में convert करना आसान होता है because it can be broken down into small portions. इसके बाद आ जाए disadvantages. सबसे पहली डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम की दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. क्योंकि ये पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझने में और उसका सॉल्यूशन देने में, तो ये टाइम लेता है, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. एंड सेकंड disadvantage is that it is difficult to show branching and looping in the algorithms. कहीं पे कई सारी ब्रांचेस बन रही हैं, किसी प्रॉब्लम में आगे कई सारी ऑप्शंस आ रही हैं या लूप बन रही है, आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग के बारे में, तो वो एल्गोरिथम में दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है. We come to the end of our today's discussion. I hope you understood whatever we discussed. These are some of the questions based on the topics that we studied today. We'll meet again. Thank you so much. Have a nice day.